جس میں خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دی گئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جگہ پر محترمہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے خصوصی طور پر شرکت کی، جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور مرکزی جماعتوں میں سے جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما جناب اویس نورانی صاحب، MQM کے مرکزی رہنما جناب عامر خان صاحب اور مختلف جماعتوں کے مرکزی صدور اور باقی تمام تنظیموں کے صوبائی صدور تشریف لائے۔ محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، سلمان خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، جناب عامر خان صاحب MQM سے، جناب شاہی سید صاحب ANP سے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی سے، جناب صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی صاحب JUP سے، جناب طارق حسن صاحب PMLQ سے، جناب ارشد وہرا صاحب PSP سے، جناب ڈاکٹر قادر بخشی صاحب STP سے، علامہ ناظر عباس تقوی صاحب اسلامی تحریک سے، جناب روشن کروڑو صاحب SUP سے، الحاج محمد رفیع صاحب نظام مصطفیٰ پارٹی سے، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث سے، جناب تاج مری صاحب نیشنل پارٹی سے، جناب جہاں زیب بلوچ صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی سے، جناب نذیر جان یوسف رئی صاحب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے، مظہر راہوجو صاحب قومی عوامی تحریک سے، سردار احمد نواز صاحب مرکزی وائس چیئرمین قومی وطن پارٹی سے، اور ان کے ساتھ خواجہ ادار الحسن صاحب، نثار احمد کھوڑو صاحب اور دیگر ساتھیوں نے اپنے وفود کے ساتھ آج کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی۔ تفصیلی گفتگو کے بعد آج کی آل پارٹیز کانفرنس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلامیہ آل پارٹیز کانفرنس سندھ جمعیت علماء اسلام، منعقدہ 9 جولائی 2020 بروز جمعرات بمقام رمادہ ہوٹل کراچی۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے زیر اہتمام آج 9 جولائی 2020 کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ درج ذیل ہے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان تھے۔ اجلاس میں صوبہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ آل پارٹیز کانفرنس 18ویں ترمیم کو آئین پاکستان کی روح تصور کرتی ہے اور اس لیے اس ترمیم کے لیے ہونے والی سازشوں پروپیگنڈوں کو قومی یکجہتی کے خلاف ایک سازش سمجھتی ہے۔ پاکستان جن نامساعد حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں اس ترمیم میں رد و بدل دانشمندی نہیں ہوگی، لہذا آج کی آل پارٹیز کانفرنس متفقہ طور پر فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف تمام سازشیں ختم کی جائیں اور اس پر منوعاً عمل درآمد کیا جائے۔ دوسری صورت میں اگر ترمیم کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو تمام جماعتیں مل کر اس کے تحفظ کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گی۔ APC یہ بھی مطالبہ کرتی ہے 18ویں آئینی ترمیم میں جو اختیارات اور حقوق مرکز نے صوبوں کو دیے ہیں، صوبوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان اختیارات کو نچلی سطح تک ضلعی اور شہری حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں۔ آل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت وفاقی پارلیمانی نظام کی مخالف ہے اور اس ترمیم کو ختم کر کے صوبوں کو وفاق کے دست نگر کر کے صوبائی خود مختاری پر شب خون مارنا چاہتی ہے۔ آل پارٹیز نے NFC ایوارڈ کے بارے میں مشترکہ فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ NFC ایوارڈ میں آئین پاکستان کی دفعہ 160 کی ذیلی شق نمبر 3 کے مطابق صوبوں کا حصہ 57.5% ہے، جس میں کسی قسم کی کمی قبول نہیں کی جائے گی، اور NFC ایوارڈ میں انتظامی آرڈر کے ذریعے کوئی بھی کمی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، 10ویں NFC ایوارڈ میں ہر صوبے کا ٹیکنیکل بورڈ ممبر اس صوبے کا رہائشی ہونا چاہیے۔
लिहाजा हर सूबे का टेक्निकल बोर्ड मेंबर उसी सूबे के गवर्नर, सूबाई हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से नामजद किया जाए। नंबर 4, मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI का इजलास हर 3 माह बाद लाजमी होना चाहिए ताकि विफाक और सूबों के दरमियान तमाम आईनी हुकूक के मसाइल बर वक़्त हल हो सकें। नंबर 5, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस बात का इयादा करती है कि मुल्क को उसके हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट, असम्बलियाँ और नुमाइंदे ही बहरानों से निकाल सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रखा जाए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की गिरती हुई माशी सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मुल्क की माशी सूरत हाल की शरह नमू माइनस में चली गई है। मौजूदा बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर है। पाकिस्तानी रुपए की दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मुल्की कर्ज़ों में इजाफे का बायस रुपए की कमी मुल्की कर्ज़ों में इजाफे का बायस बन रही है। इस पर मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 साल मुद्दत में इतने कर्जे लिए हैं जिससे साबिक़ा कर्ज़ों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है। अवाम इज्तमाई खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सरकारी इदारों से लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियों से निकाला जा रहा है और लातादाद बेरोज़गार हो चुके हैं, जिस वजह से लाखों लोग भूख व अफलास का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो होश के नाखुन लें और IMF और गैर मुल्की मालियाती इदारों के ख्वाहिश पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मईशत पर जुल्म न ढाया जाए। नंबर 7, आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन के बरतरफी की शदीद मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस जालिमाना फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले को कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम पर हल किया जाए। महकमा सियाहत को ख़त्म करने और तमाम मुलाजिमीन को बरतरफ करने का हुक्म गरीब मुलाजिमीन का माशी कत्ल तस्वुर किया जाता है। नंबर 8, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुल्क में जारी मेगा प्रोजेक्ट यानी CPEC में रुकावट डालने की हुकूमती कोशिशों की मजम्मत करते हुए उस मंसूबे को गेम चेंजर का नाम देते हुए उस पर रुकावटों को फिलफौर दूर करने का मुतालबा करती है और ये भी मुतालबा करती है कि इस अहम मंसूबे में तमाम सूबों को बराबरी के बुनियाद पर हिस्सा दिया जाए। नंबर 9, कोरोना वायरस की वबा में हुकूमत के गैर संजीदा इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन की तमाम जमातों ने अपने तमाम तर इख्तियारात को पसे पुश डालकर हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया और लॉकडाउन के दौरान मुतासरा ख़ानदानों की मदद करते हुए राशन और नकूद रकम भी तकसीम की गई। लेकिन हुकूमत के गैर मुतमईन इक़दामात की वजह से कोरोना वबा पूरे मुल्क में फैली, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम अपनी जानों के एवज बर्दाश्त कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ने फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज व दीगर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। इस वबा और लॉकडाउन से माशी तौर पर मुतासर होने वाले तमाम तबकों को रिलीफ पैकेज देने का भी मुतालबा किया गया। नंबर 10, टिड्डी दल से मुतासरा ज़मींदारों और काश्तकारों को भी रिलीफ पैकेज दिया जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमतों से ऑल पार्टीज़ ने मुतालबा किया कि टिड्डी दल के हमलों से फसलों को बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अगर इस सिलसिले में कोताही की गई तो मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा होने का खदशा है। नंबर 11, आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में बिलखुसूस और सूबे सिंध में तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का मुतालबा करती है। सियासी कारकुनों को अगवा करके कत्ल करने की मजम्मत करती है और मुल्क में जारी गैर आइनी गैर कानूनी गिरफ्तारियों की भी मजम्मत करती है। हुकूमत से मुतालबा करती है कि इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी सिलसिले को फिलफौर रोका जाए। पाकिस्तान में कोई शख्स मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर किसी फर्द पर किसी जुर्म का या कोई इल्ज़ाम हो या किसी हुकूमत, कानून या इदारे को कोई शिकायत हो तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। इंसानी हुकूक का आलमी चार्टर भी यही कहता है कि किसी के घर में बगैर FIR, बगैर वारंट, बगैर लेडीज पुलिस के दाखिल होना गैर कानूनी, गैर आइनी और आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। नंबर 12, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मीडिया चैनल्स की बंदिश की मजम्मत करती है और समझती है कि हुकूमत मीडिया का सामना करने से कासिर है।
हुकूमत तंग नजरी की बुनियाद पर न तनकीद बर्दाश्त कर सकती है, न ही आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त दे सकती है। मीडिया से भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत के मुतासिबाना रवैये की मजम्मत की जाती है। APC हुकूमत की जानिब से नेब को हरकत में लाने और मीडिया पर दबाव की पॉलिसी को मुस्तरद करती है। ये इक़दाम इजहार आज़ादी पर हमला तस्वर हैं। लिहाजा APC मुतालबा करती है कि रियासत के चौथे सतून मीडिया को मुकम्मल आज़ाद रखा जाए ताकि मीडिया आज़ाद माहौल में आवाम को असल हक़ाइक़ से आगाह कर सके। ऑल पार्टीज मुतालबा करती है कि मीडिया मालिकान जो वाजिबात हुकूमत की तरफ से बकाया हैं उन्हें फिलफोर अदा किया जाए और मीडिया मालिकान से भी मुतालबा किया गया कि वो अपने इदारों से सहाफ़ियों को बेरोज़गार न करें। नंबर 13, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी एयरलाइन PIA की तबाहाली पर तशवीश का इजहार करती है। PIA जो कि कौमी असासा है और जिसे दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन तस्लीम किया जाता था, आज उसे क्यों पस्ती की राह पर गामजन किया गया है। इस वक्त उसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के रूट्स बंद हो चुके हैं। क्या PIA को खोखला और इस नहज पर ला खड़ा करके उसकी पुष्ट पर दुनिया भर में PIA के असासाजात को फ़रोख्त करने की मज़मूम साजिश तो कार फरमा नहीं है, या फिर हज़ारों मुलाजमीन जिनका रोज़गार कौमी एयरलाइन PIA से वाबस्ता है उन्हें बेरोज़गार तो नहीं किया जा रहा। हम किसी सूरत PIA मुलाजमीन को बेरोज़गार नहीं होने देंगे और नहीं कौमी वर्से PIA या दुनिया भर में मौजूद उसके असासों और मिल्कियतों को फ़रोख्त करने की इजाज़त देंगे। नंबर 14, ये इलेक्ट्रिक हेस्को सेपको की जानिब से शहर कराची समेत सूबे सिंध के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग की मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबे सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग से सनती मसाइल के साथ साथ आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं। इसे फिलफोर ख़त्म किया जाए और तसलसल के साथ बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नंबर 15, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुल्क में होने वाली करप्शन खुसूसी तौर पर चीनी, आटा, अद्वियात, पेट्रोल पर गहरी तशवीश का इजहार करती है और इन चीनी, आटा, अद्वियात, पेट्रोल में करप्शन करने वाले माफियाज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके केफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करती है। मैं आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ, सहाफ़ी हजरात का मशकूर हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम जमातों के कायदीन और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो आगे तशरीफ